Hello everyone. Today's topic is carotid triangle. Anterior triangle of the neck is further divided into carotid triangle, digastric triangle, muscular triangle and submental triangle. Now we are studying carotid triangle. Boundaries of carotid triangle. In front and above we have posterior belly of digastric muscle and stylohyoid muscle in front and above. In front and below we have superior belly of omohyoid muscle, and behind we have anterior border of sternocleidomastoid muscle. This is sternocleidomastoid's anterior border, midline, imaginary line and lower border of mandible, extending an imaginary line extending up to the from angle of the mandibular to mastoid process. This is the boundary of anterior triangle. Anterior triangle is further divided into muscular triangle, carotid triangle, digastric triangle and half submental triangle. Now this is the carotid triangle. Now boundaries of the carotid triangle. In front and above this is posterior belly of digastric muscle, and with posterior belly of digastric muscle muscle came, that is stylohyoid muscle, from styloid process to hyoid. In front and below we have superior belly of omohyoid muscle, and posteriorly we have anterior border of sternocleidomastoid muscle. Now floor. In floor we have four muscles. Thyrohyoid muscle. First muscle is thyrohyoid muscle. Second muscle is hyoglossus. Third one is inferior constrictor of pharynx. And fourth one is middle constrictor of pharynx. Fine. In floor we have four muscles. Thyrohyoid muscle. This one is thyrohyoid muscle. Second muscle is hyoglossus muscle. Thyrohyoid, from thyroid cartilage to hyoid bone. This is greater cornu of hyoid. मसल नीचे से जो ऊपर आ रही है दैट इज थायरोहायोइड मसल, और हायोइड के ग्रेटर कॉर्नू से जो मसल टंग में जा रही है हायोग्लॉसस मसल, दैट इज हायोग्लॉसस. And two constrictors of pharynx, middle constrictor and inferior constrictor. These four muscles combine and form floor of carotid triangle. Now contents of carotid triangle. We have arteries, veins, nerves and other content. First of all, arteries. We have major artery, that is common carotid, and its two terminal branches. Common carotid artery and its two terminal branches. Veins, that is internal jugular vein. Nerves, last three cranial nerves, that is 10, 11 and 12. These are the contents. Other content
at the apex, in the uppermost part of the carotid triangle, we have apex of the parotid gland. Parotid, paraotid means around the gland, around the ear. This is the location of parotid gland. Apex of this gland lies somewhat here in carotid triangle. And another content is deep cervical lymph nodes. In this diagram we have common carotid artery. This is common carotid artery. Common carotid artery bifurcates into its two terminal branches, internal carotid artery and external carotid artery. Now then, main content is internal jugular vein. This is the internal jugular vein, common carotid artery, its two terminal branches, and third is nerves. Spine, three nerves mainly. This is vagus, 10, spinal root of accessory nerve, 11, and hypoglossal nerve, 12th nerve. 10, 11, 12. These three cranial nerves are content of carotid triangle. Cranial nerves बेस ऑफ द स्कल से आ रही हैं. कॉमन कैरोटिड आर्टरी इधर आर्च ऑफ ओटा से आ रही है लेफ्ट साइड में, है ना, और राइट साइड में इनोमिनेट आर्टरी से आ रही है. ठीक है. और जो इंटरनल जुगुलर वेन है, इंटरनल जुगुलर वेन वीनस ब्लड ड्रेन कर रही है स्कल से, ब्रेन से, अपर पार्ट से. यहाँ से ब्लड लेके वापस रिटर्न आ रही है. तो ये ऊपर से नीचे आ रही है. क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से नीचे की तरफ आ रही है. कौन सी? 10, 11 एंड 12. ये सब कंटेंट नेक के अंदर है. अब जो हमारी बाउंड्री है, दिस इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड मसल, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक. सेम इसके साथ में स्टाइलोहायोइड मसल रन करती है. और यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड. दिस फॉर्म्स द ट्राइंगल एंड दीज आर द कंटेंट्स ऑफ द carotid triangle. Same. Now carotid, first content artery. Carotid artery. This is the arch of aorta. Left common carotid artery arises from arch of aorta, and on right side common carotid artery arises from brachiocephalic artery or innominate artery. Common carotid artery enters the neck from thorax to neck, and in neck at the level of C3 and C4 vertebrae, at the level of intervertebral disc in between the C3 and C4 vertebrae, common carotid artery bifurcates into internal carotid artery and external carotid artery. The bifurcation of carotid artery is at the level of disc between, disc is intervertebral disc between C3 and C4 vertebrae. Level of hyoid, hyoid बोन कौन से लेवल पे होती है? hyoid बोन है हमारे पास at level of C3. तो जस्ट hyoid के आसपास में, जस्ट हायोइड से थोड़ा सा नीचे, हायोइड बोन की जो पोजीशन है डिसेक्शन में, हम उससे थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो हमें कॉमन कैरोटिड का बाइफर्केशन मिलेगा. ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इन नेक. इन नेक internal carotid artery gives no branches.
Position of internal and external carotid artery in carotid triangle. As name suggests, internal carotid and external carotid. एक्सटर्नल कैरोटिड को बाहर की तरफ होना चाहिए नाम के हिसाब से, और इंटरनल कैरोटिड को अंदर की तरफ होना चाहिए कैरोटिड ट्रायंगल में, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं. इंटरनल कैरोटिड जो होती है, इंटरनल कैरोटिड लाइज पोस्टीरियोलेटरल. क्या पोजीशन है इसकी? इसकी पोजीशन है पोस्टीरियोलेटरल टू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से पोस्टीरियोलेटरली, मतलब इंटरनल कैरोटिड लेटरली होती है, पर इसका नाम इंटरनल कैरोटिड क्यों रखा? फिर इंटरनल कैरोटिड इसलिए रखा बिकॉज ये ब्रेन को सप्लाई कर रही है, स्कल के अंदर एंटर करेगी, इसलिए इसका नाम रखा हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड सिर्फ नेक में सप्लाई कर रही है. पोजीशन के बेसिस पे नाम नहीं है, कहाँ जा रही है ब्लड सप्लाई, कहाँ ब्लड सप्लाई करेंगे, उसके बेसिस पे नाम रखा है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. डिसेक्शन में जब देखेंगे तो एक्सटर्नल कैरोटिड के पोस्टीरियो लेटरल साइड में हमें इंटरनल कैरोटिड मिलेगी. इंटरनल कैरोटिड नेक के अंदर कोई ब्रांचेस नहीं देती है, और कॉमन कैरोटिड की भी 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती है, कोई कोलेटरल ब्रांच नहीं होती. सिर्फ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की 8 ब्रांचेस होती हैं जो नेक में होती हैं, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5 ब्रांचेस हमें कॉमन कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर दिखाई देती हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. in interval between internal and external carotid arteries in upper part of the neck is occupied by. क्या स्ट्रक्चर्स होंगे इन दोनों के बीच में? Interval between the internal and external carotid arteries in the upper part of the neck is occupied by, क्या आएगा? Apex of parotid gland, apex of parotid gland, styloid process of temporal bone, styloglossus and stylopharyngeus muscle. स्टाइलॉइड प्रोसेस आ रहा है तो उस पे से जो 2 मसल आ रही है, स्टाइलोग्लॉसस जो टंग में जा रही है, एंड स्टाइलोफेरेंजियस जो फारेंक्स में जा रही है, 2 मसल्स, एंड ग्लोसोफेरेंजियल एंड फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व. 2 नर्व्स, दैट इज 9th ग्लोसोफेरेंजियल नर्व एंड 10th नर्व की फेरेंजियल ब्रांच ऑफ vagus nerve. So in interval between the internal and external carotid artery in upper part of the neck is occupied by apex of the parotid gland, styloid process of temporal bone, and from styloid process 2 muscles आ रही है, styloglossus and stylopharyngeus muscle, and 2 nerves हैं 9 and 10. 10 that is vagus, 9 ग्लोसोफेरेंजियल. वेगस के साथ वेगस की ब्रांच आ रही है एपेक्स पे, दैट इज फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस नर्व. नाउ ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटरी आर्टरी इन कैरोटिड ट्रायंगल. तो 5 ब्रांचेस होती हैं. फर्स्ट इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के मीडियल साइड से, मीडियल जो साइड होता है वहाँ पे दिखाई देगी हमें असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. इट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, अराइजेस फ्रॉम द मीडियल साइड एंड इट असेंड्स अलोंग द वॉल ऑफ द फारेंक्स एंड रीचेस द बेस ऑफ द स्कल. सेकेंड ब्रांच इज सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी. सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी passes downward and forward resting on the inferior constrictor muscle. inferior constrictor muscle कहाँ देखा हमने? it forms the floor of carotid triangle. उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक आर्टरी आती दिखाई देगी एक्सटर्नल कैरोटिड से, दैट आर्टरी इज सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी. देन lingual artery,
third artery. Lingual artery, it passes forward and upward and forms a loop and rest on middle constrictor. मिडिल कंस्ट्रिक्टर मसल के ऊपर लिंगुअल आर्टरी लूप बनाएगी. और लिंगुअल आर्टरी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लिंगुअल आर्टरी के साथ जो नर्व जा रही है दैट इज द 12th cranial nerve, दैट इज हाइपोग्लॉसल नर्व. ठीक है. फोर्थ आर्टरी है हमारे पास फेशियल आर्टरी. फेशियल आर्टरी passes upward and forward beneath the posterior belly of digastric. फेशियल आर्टरी को कहाँ जाना है? फेशियल आर्टरी को फेस पे आना है, तो वहाँ से इमर्ज होके निकल के वो कहाँ जाएगी? beneath the digastric, डाइगेस्ट्रिक ट्राइंगल में आएगी, है ना. वहाँ पे लूप बनाएगी एस शेप का. 2 लूप बनाती है. लिंगुअल आर्टरी में सिंगल लूप होता है, इसमें एस शेप कुछ ऐसा सा डबल लूप होता है अराउंड द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. लूप बनाएगी और फिर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल से फेस के ऊपर आएगी और वहाँ सप्लाई करेगी, इस पूरे एरिया को सप्लाई करेगी. सुपीरियर थायराइड आर्टरी को थायराइड को सप्लाई करना है, इसलिए उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो डिसेंड करेगी नीचे की तरफ. असेंडिंग फेरेंशियल ऊपर की तरफ जाएगी, मीडियल सरफेस पे होगी. सुपीरियर थायराइड आर्टरी डिसेंड करेगी. लिंगुअल आर्टरी के साथ में 12th cranial nerve रन करेगी. और जो 5th आर्टरी है दैट इज़ द ऑसिपिटल आर्टरी. ऑसिपिटल आर्टरी ये फेशियल आर्टरी है, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड में एक आर्टरी मिलेगी, दैट इज़ द ऑसिपिटल आर्टरी. दिस इज कॉमन कैरोटिड आर्टरी. एक्सटर्नल कैरोटिड. इंटरनल कैरोटिड गिव्स नो ब्रांचेस in neck. Now first branch is ascending pharyngeal artery, then we have superior thyroid artery, lingual artery, third and fourth is facial, fifth is occipital artery. ये 5 आर्टरी हमें दिखाई देंगी कैरोटिड ट्राइंगल के अंदर. डायग्राम में देखते हैं. दिस इज ओमोहाइड मसल, टेंडन, inferior belly, superior belly. This is superior belly of omohyoid, posterior belly of digastric muscle, tendon, then anterior belly. Approximately यहाँ पे क्या है? ये इस तरीके से ये है anterior border of sternocleidomastoid. अगर ये sternocleidomastoid का anterior border है, ये posterior belly of digastric muscle है, साथ में stylohyoid muscle है, और ये यहाँ पे दिस इज सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहाइड. तो ये जो बाउंड्रीज हैं किसकी बाउंड्रीज हैं? कैरोटिड ट्राइंगल की. अभी इसके अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं? ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी नेक से थॉरेक्स से नेक में आ गई. अभी क्या इसके मीडियल साइड से आएगी कौन सी? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, इसको ऊपर जाना है. देन सेकेंड आर्टरी कौन सी है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी. सुपीरियर थायराइड आर्टरी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इट रन्स ऑन inferior constrictor muscle and it passes downward. इस तरीके से डाउनवर्ड आ रही है. दिस इज सुपीरियर थायराइड आर्टरी. देन लिंगुअल आर्टरी. लिंगुअल आर्टरी को टंग को सप्लाई करना है, तो यहाँ से एक सी शेप का लूप बना के एक आर्टरी आ रही है. दिस इज लिंगुअल आर्टरी, और इसके साथ में 12th cranial nerve. देन ऊपर जो जा रही है वो फेशियल आर्टरी है. ये फेशियल आर्टरी है, इसको ऊपर जाके फेस को सप्लाई करना है. सब मैंडिबुलर रीजन में सब जगह ये सप्लाई करेगी. तो ये कंटेंट क्या क्या हो गए? आर्टरीज में कॉमन कैरोटिड आर्टरी बाइफरकेट हुई इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड. एक्सटर्नल कैरोटिड की 5 ब्रांचेस आउट ऑफ 8, 5 ब्रांचेस कैरोटिड ट्रायंगल में दिखती हैं. फर्स्ट असेंडिंग फेरेंजियल, सुपीरियर थायराइड आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी एंड ऑसिपिटल आर्टरी. नाउ कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस. 2 टर्म्स आती हैं, कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस. कैरोटिड बॉडी lies at bifurcation of common carotid
artery. It is chemoreceptor for O2 levels, ना. And visceral sensory in nature. Carotid sinus branch of glossopharyngeal nerve यहाँ पे आती है, 9th से रिलेटेड होती है, यहाँ इसके रिलेशन में आती है 9th नर्व ग्लोसोफेरेंजियल, ठीक है. एंड कैरोटिड साइनस, इट इज कहाँ मिलेगा, इसका पोजीशन क्या है, इट इज़ फाउंड इन प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. जैसे ही बाइफर्केशन हुआ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के इनिशिएशन पे प्रॉक्सिमल पार्ट पे कैरोटिड साइनस, दिस कैरोटिड बॉडी कीमो रिसेप्टर है और कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर है, सेंसिटिव टू ब्लड प्रेशर, है ना. यहाँ पे 9 और 10th दो नर्व्स सेंसेशन लेके जाएंगे कैरोटिड साइनस से. सेम कैरोटिड बॉडी में अगर कभी कोई ट्यूमर होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, अगर कैरोटिड बॉडी का अगर कैरोटिड बॉडी एनलार्ज हो जाती है तो उसको हम, उस ट्यूमर का नाम होता है, उसको बोलते हैं पोटैटो ट्यूमर. पोटैटो ट्यूमर, enlargement of carotid body. Now internal jugular vein. Internal jugular vein, it extend from base of the skull, है ना, base of the skull to कहाँ तक जाना है, रूट ऑफ नेक, है ना, रूट ऑफ नेक. इंटरनल जुगुलर वेन ड्रेन कहाँ से कर रही है, ब्लड, जितना भी ब्रेन से जो ब्लड आ रहा है उसको ड्रेन कर रही है जुगुलर फोरामिना. जुगुलर फोरामिना में से जो ड्यूरल वीनस साइनसेस हैं वो जब कंबाइन होते हैं इंटरनल जुगुलर वेन बनती है लास्ट में, है ना, वो अलग टॉपिक है. तो इंटरनल जुगुलर वेन का फॉर्मेशन हुआ, जुगुलर फोरामिना से बाहर आई, जुगुलर फोरामिना से जो नर्व्स आ रही है वही हमें कैरोटिड ट्रायंगल में दिखती है, वही नर्व्स इसके साथ में आती हैं. और इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी प्लस वेगस नर्व एक शीथ के अंदर एनक्लोज रहती है, जिसे कहते हैं कैरोटिड शीथ. कॉमन जो कैरोटिड आर्टरी होती है उसका भी पार्ट होता है, बस एक्सटर्नल कैरोटिड शीथ के अंदर नहीं आती है. कैरोटिड शीथ अलग टॉपिक है, ठीक है. नाउ कंटेंट में क्या है, इंटरनल जुगुलर वेन एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द रूट ऑफ द नेक. पोजीशन क्या है, इट लाइज लेटरल टू कैरोटिड सिस्टम. इट लाइज लेटरल टू कैरोटिड सिस्टम, लेटरल मोस्ट स्ट्रक्चर दिखाई देगा. कैरोटिड शीथ एनक्लोज होती है कैरोटिड शीथ में. नाउ क्वेश्चन पूछता है स्ट्रक्चर इन बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन एट बेस ऑफ द स्कल, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट 4 क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स होती है. यहाँ पे हमारे पास होगा ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसल. 9, 10, 11 एंड 12. तो 9th नर्व जो होती है वो हमें कैरोटिड ट्रायंगल में नहीं दिखती है, बिकॉज ग्लोसोफेरेंजियल इधर से फेरेंजियल प्लेक्सस बनाती है वेगस के साथ में और इधर सप्लाई करती है सब फैरिंग्स वगैरह को, तो वो उधर चली जाती है. बाकी 10, 11 एंड 12, 11 को सप्लाई करना है, मोटर सप्लाई स्पाइनल पार्ट आ रहा है ना एक्सेसरी नर्व का, तो ये मोटर सप्लाई देगी स्टेनोक्लीडोमास्टोइड एंड ट्रेपेजियस को, तो इसको नेक में आना है. 12 को टंग में जाना है, तो वो इधर से आके फिर टंग में जाती है लिंगुअल आर्टरी के साथ में. और 10 वेगस तो बहुत जगह सप्लाई करती है, वास्ट कोर्स है उसका, ठीक है. तो 9, 10, 11, 12 द स्ट्रक्चर इन बिटवीन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल जुगुलर वेन. नाउ ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन इन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो ट्रिब्यूटरीज क्या क्या हैं, करस्पॉन्डिंग टू आर्टरीज, जो हमें आर्टरीज दिखाई दे रही थी
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो ब्रांचेस थी सेम वही, सुपीरियर थायराइड वेन, लिंगुअल वेन, कॉमन फेशियल वेन, है ना, फेशियल वेन एंड फेरेंजियल एंड occipital veins and pharyngeal veins. Same 5 tributaries: superior thyroid vein, lingual vein, common facial vein, pharyngeal vein and occipital veins. This is internal jugular vein. This is internal jugular vein, position lateral to carotid system, common carotid and internal carotid के lateral. carotid sheath approximately यहाँ पे ऐसे एक शीथ है डीप फेशिया की जो इधर से एनक्लोज करेगी बेस ऑफ द स्कल, जुगलर फोरामिना, है ना, जुगलर फोरामिना से जैसे ये बाहर आएंगे डीप फेशिया की अटैचमेंट है वहाँ पे बेस ऑफ द स्कल पे, उस एरिया पे, वहाँ से वो एनक्लोज कर लेगा इंटरनल जुगलर वेन, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और नीचे जब आएंगे तब कॉमन कैरोटिड को, और साथ में अपर मोस्ट पार्ट पे उसमें 9, 10, 11 जो चारों नर्व्स वहाँ से आ रही हैं वो चारों नर्व्स होती हैं, बट मैक्सिमम पोर्शन में पोस्टीरियरली वेगस नर्व होती है. नर्व्स कौन कौन सी रहेगी? स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व 11, लूप ऑफ हाइपोग्लॉसल नर्व 12 एंड वेगस दैट इज 10. 10, 11, 12, 9 क्यों नहीं आ रही है? 9 हमारे पास आज जुगलर फोरामिना से रही है, बट फेरेंजियल प्लेक्सस बना के वो उधर 10th के साथ मिक्स हो जाती है और उधर फेरिंग्स को सप्लाई करना है, इसलिए वो नेक में नहीं आ रही है, बाकी सब नेक में आएंगी. सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक इज नॉट अ कंटेंट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल, कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर रिट्रैक्टिंग द कैरोटिड शीथ लेटरली. कंटेंट अगर कंटेंट्स देखते हैं, दिस इज 10th वेगस नर्व 10, दिस इज स्पाइनल रूट ऑफ accessory nerve, this is 11, and hypoglossal nerve with lingual artery, this is 12th nerve. Now other structures, other content, same, apex of the parotid gland, apex of the parotid gland, it encroaches on the upper angle of the carotid triangle after overlapping the posterior belly of digastric muscle. Second, chain of deep cervical lymph nodes along the internal jugular vein includes jugulodigastric group and jugulo-omohyoid group. Thank you.